This is Shahid Raza. We are going to discuss the topic assisting the learner in personal and social development. And for providing help and assisting the students, it's very important for the teacher to understand what are the basic techniques for developing these personal and social skills of students. Personal and social skills are the abilities children must develop to care for themselves. These are the abilities that are very necessary for the students to care about them. And the social skills are interacting with others, also understanding the feelings of others. So personal development is how children feel about themselves and they interact with the society and the members of the society in which they are living. It's about the relations and the relationship of children with all the stakeholders of society. So providing personal and social development to students and learners is very necessary, and in this regard teacher can play his role. Self-awareness and the social management, self-awareness and the self-management, and social awareness and the social management. These are the concepts which are very necessary for the teachers to understand, as well as to transfer these concepts to their students so that they may be able to understand what really personal development is and how can they improve their social development and to build positive relationships and interaction with all the people. So let's discuss about the aims of personal and social development. To develop social skills in relating to others, developing positive values and attitudes, ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना कि वो काम आ सकें और हेल्पफुल साबित हो सकें एक बच्चे के हवाले से, एक स्टूडेंट के हवाले से, एक लर्नर के लिए, ताकि वो फ्यूचर में इसको यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें. To enhance coping skills with stressful situations that may arise at any stage in life, and to develop problem solving skills, to improve social competence, and helping children to work independently, to understand the function of home, school and community, and to understand the customs, traditions and the political system of any country, of any nation, of any society. तो हमने बात की कि सोशल स्किल्स को डेवलप करना, हमने बात की कि पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यूज़ को डेवलप करना, और पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट का एक और मकसद ये है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से कोप करते हैं. और डिफरेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पेश आ सकती हैं ज़िंदगी में किसी भी इंडिविजुअल को, तो हाउ टू डील विद दोज सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस. और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ज़रिए किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं और उनका सलूशन निकाल सकते हैं. आप माशरे में रहते हुए एज ए मेंबर ऑफ़ दैट सोसाइटी अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं और अपना पॉजिटिव रोल किस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं. आपके हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, इसकी अहमियत और इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है. सो यू मे बी एबल टू बिकम अ वेरी यूज़फुल मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी. और ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करना कि बच्चे इंडिपेंडेंटली काम कर पाएँ. घर का क्या फंक्शन है, सोसाइटी का क्या फंक्शन है, स्कूल का क्या फंक्शन है, इसके हवाले से आगाही देना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि व्हाट इज़ देयर रोल रिलेटेड टू होम, रिलेटेड टू स्कूल, एज वेल एज रिलेटेड टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी इन विच दे आर लिविंग. और डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वो तौर तरीके जो हमारे यहाँ राइज हैं और हमारे फोर फादर्स, हमारे आबा व अजदाद, हमारे पेरेंट्स उसके ऊपर अमल करते आए हैं, वो कौन से ट्रेडिशंस हैं, ताकि उनको मालूम किया जा सके और उसके मुताबिक अगर वो सही हैं तो उसके मुताबिक फर्दर आगे डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके. वो कौन से कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम क्या है किसी भी कंट्री का, सोसाइटी का जहाँ पे आप रह रहे हैं, इससे आगाही प्रोवाइड करना और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना ये भी ज़रूरी है. तो एक टीचर पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट के हवाले से अपना क्या रोल प्ले कर सकता है और कौन सा प्रोग्राम है जो वो अडॉप्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, जिसके ज़रिए में इंडिविजुअल्स की, स्टूडेंट्स की और लर्नर्स की प्रॉपर पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट की जा सके. सो नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स. टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. So it's very necessary to develop the skills of communication, how to communicate with others, with friends, with parents, with teachers and all the members of the society in which they are living, and developing good habits of personal hygiene and health, and also providing the training of self care. अपनी खुद सेल्फ केयर किस तरीके से करनी है
और आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को महफूज करने के लिए और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और वो कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो एज ए इंडिविजुअल आपको पूरी करनी होंगी। फिज़िकल फिटनेस का मेयार क्या होना चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टीचर की जिम्मेदारी है। इन पर्सनल हेल्थ, हाइजीन एंड अपीयरेंस, द टीचर कैन प्ले हिज रोल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन related to hygiene, related to health issues. So understanding the feelings and emotions. So people having broad range of positive and negative emotions. To understand all those positive and negative emotions is very necessary. It's the responsibility of the teacher to understand the emotional well-being and the emotional state of mind. Negative feelings like emotions and anger are natural. So you have to understand these sort of negative feelings, and sometimes anger is also blessing of Allah Almighty. So proper guidance and counseling should be provided to individuals and learners so that they may be able to understand these types of emotions, and providing the techniques and ways to manage these sort of negative feelings and emotions. बहुत सारी ऐसी feelings होती हैं negative जो बच्चों में आ सकती हैं, मसलन गुस्सा है, frustration है। तो इन तमाम नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, और वो कौन सा तरीका है जिससे इंडिविजुअल और लर्नर इन तमाम नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए टीचर का रोल और उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि टीचर के पास वो नॉलेज होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो टेक्निक्स जानता हो जिसके ज़रिए वो उस बच्चे को प्रॉपर गाइड कर सके how to deal with these sort of negative emotions and feelings. Enhancement of self-esteem. इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ एस्टीम क्या है और हम किस तरीके से इस सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं, खुद एतमादी कैसे पैदा कर सकते हैं एक इंडिविजुअल में और लर्नर में। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी शामिल है कि वो अपने स्टूडेंट्स को और लर्नर्स को ये सिखाए और इस तरीके से गाइड करे कि वो सेल्फ एस्टीम के हवाले से जान सकें। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, और वो प्लस पॉइंट्स क्या हैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड व्हाट आर द वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बारे में टीचर को उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, एनहांसिंग चिल्ड्रंस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो अपने आप को किस तरीके से सिक्योर फील कर सकते हैं, उनको ये एहसास दिलाना कि you all are secure. And in this regard, it's very important to understand the role of individual differences. Every individual is different from other individual. एक फ़र्द दूसरे से मुख्तलिफ है। As a teacher, you have to accept and identify these type of individual differences. So another important point is peer group and peer relationship, friendship. So the sense of affiliation is the basic need of every individual. एक फ़र्द एक दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहता है, वो फ्रेंडशिप में रहना चाहता है। एंड हाउ टू डेवलप पॉजिटिव फ्रेंडशिप, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू प्रोवाइड दोज बेसिक गाइडलाइंस फॉर मेकिंग फ्रेंडशिप पॉजिटिव। ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें कोऑपरेशन हो, जिसमें ट्रस्ट हो, जिसमें एहसास ज़िम्मेदारी हो, जिसमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करने का जज्बा हो। ऐसी फ्रेंडशिप को डेवलप करने के लिए टीचर अपना रोल प्ले कर सकता है कि वो तमाम गाइडलाइंस स्टूडेंट्स तक शेयर करें और उनको प्रॉपर गाइडेंस दे और उनकी काउंसलिंग करे इस हवाले से, ताकि वो इस काबिल हो सकें कि वो अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में अपने फ्रेंडशिप को बेहतर कर पाएँ। सो प्रोवाइडिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू स्टूडेंट्स इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्टेजेस पे कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स and to make solutions of those problems. It's the responsibility of teacher to provide the proper guidelines related to solving and identifying those problems. इसके लिए information को collect करना, brainstorming करना और proper decision making करना, और वो तमाम skills जो बुनियादी हैं और ज़रूरी हैं for proper and positive decision making, वो तमाम skills बच्चों तक पहुँचाना और उनको उस हवाले से गाइड करना, ये टीचर की जिम्मेदारी में शामिल है। देन कम स्टडी स्किल्स, ये स्किल्स भी बहुत ही ज़रूरी हैं। हाउ स्टडी हैबिट्स कैन एनहांस एंड फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स
इन दीज स्किल्स देयर इज टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, आपके पास 24 आवर्स हैं तो इनको किस तरीके से आपने यूज़ करना है और इसका बेस्ट यूज़ करना है, और इस टाइम का पॉजिटिव यूज़ किस तरीके से किया जाना चाहिए, इस हवाले से टीचर गाइड करेगा अपने स्टूडेंट्स को और लर्नर्स को, सो दे मे बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज देयर टाइम पॉजिटिवली एंड प्रॉपरली। द मेमोरी स्ट्रेटजीज़, ये बताना कि वो किस तरीके से अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको महफूज कर सकते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ नोट टेकिंग स्किल्स, एग्जामिनेशन स्किल्स which are very necessary for every individual to know about it. Providing the knowledge of drug education, how to avoid drugs, so what is the negative impact of the use of these drugs, so how you can avoid these type of drugs. Providing this type of information to the learners is also very necessary. ये मालूमात प्रोवाइड करना कि आप ड्रग से कैसे बच सकते हैं और ये ड्रग किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है आपकी हेल्थ के ऊपर, और स्टूडेंट्स को मुकम्मल आगाही देना ताकि वो अपने आप को इस बुरी आदत से बचा पाएँ। प्रोवाइडिंग द फैमिली लाइफ एजुकेशन, हाउ टू डील विद द फैमिली मेम्बर्स एंड व्हाट आर द पॉजिटिव रिलेशनशिप, हाउ टू बिल्ड दैट पॉजिटिव रिलेशनशिप इन फैमिली, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द फैमिली। तो एज ए फैमिली मेम्बर पॉजिटिव एटीट्यूड को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, आप अपना रोल किस तरीके से प्ले कर सकते हैं इन दिस रिगार्ड। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ इशू. So we have discussed the personal development as well as the social development of individual. Personal guidance और development में आप बच्चे के personal matters को discuss करेंगे. उसके emotional problems हो सकते हैं, उसके ethical और moral problems हो सकते हैं, as well as उसके health problem हो सकते हैं. इन तमाम के बारे में मुकम्मल guidance provide करना ये personal development और personal guidance में आता है. In personal development you can also provide information related to helping the children. You can provide the information to children how to use their leisure time. उनका फ्री वक्त वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं in a best way, how to utilize that leisure time positively. किस तरीके से आप किरदार साजी बेहतर कर सकते हैं, आप करेक्टर बिल्डिंग को कैसे फोकस कर सकते हैं, और बच्चों के और लर्नर्स के स्टूडेंट्स के करेक्टर को बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, इसके हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दैट इज़ रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट. आप बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट क्यों करते हैं? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल एडजस्टमेंट. एक इंडिविजुअल अपने आप को किस तरीके से बेहतर तौर पर एडजस्ट करने के काबिल हो सकता है और इंटरपर्सनल टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट से किस तरीके से बचा जा सकता है, और वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं जिनको यूज़ करके आप डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट से और डिफरेंट सिचुएशन जिसमें फ्रस्ट्रेशन का चांस होता है उससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है. एंड आल्सो सेटिंग अप द हारमोनियस एनवायरनमेंट. ऐसा माहौल, साजगार माहौल, ऐसा बेहतरीन माहौल कि जिसमें एतमाद साजी की फ़ज़ा हो और जिसमें एक बच्चा बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सके और अपना रोल प्ले कर सके. एंड आल्सो टेकिंग डिसीजन फॉर देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स. एक इंडिविजुअल, एक लर्नर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से बेहतर तौर पर सॉल्व कर सकता है. ही मे बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दोज प्रॉब्लम्स दैट मे कम एट एनी टाइम इन हिज लाइफ, एंड टू प्रोवाइड द कोपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज एट एनी टाइम. एक फ़र्द किस तरीके से खुश रह सकता है, एक फ़र्द किस तरीके से पीसफुल रह सकता है, और एक फ़र्द किस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई रख सकता है, इस हवाले से भी ज़रूरत है कि पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और प्रॉपर काउंसलिंग टेक्निक्स अप्लाई की जाए ताकि हम तमाम अफराद को, तमाम इंडिविजुअल्स को, लर्नर्स को बेहतरीन तरीके से गाइड कर पाएँ कि हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, how to create a peaceful environment, and also how to remain satisfied in life. So I think this lecture will be useful for understanding the basic concepts of personal development as well as the concept of social development, and what are the points which are very necessary to understand related to personal as well as social development. What is the role of teacher related to personal and social development of child, and how guidance can be provided to individuals and learners, and what are the counseling techniques which are very important for teacher to understand so that he may be able to provide proper counseling to learners and students.